عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنا عشق ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار، ورنہ وہ سیدی علی نسبی وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن کے ہو سندھی کوئی ہندی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے سندھی کوئی ہندی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، محفل عشق، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق مریم کی صداقت، عشق مریم کی صداقت، عشق رنج ہاجرہ، عشق ہی ملکہ سباؤ آسیہ کا ماجرا، عشق بن کر صبر جھلکا شکل میں ایوب کی، عشق بن کر صبر جھلکا شکل میں ایوب کی، عشق بن کر اشک ٹپکا آنکھ سے یعقوب کی، عشق کے صدقے سنی رب نے دعائے زکریا، عشق پر 24 گھنٹے سایہ ہائے کبریا، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق نے بن کر عصا دریا کو 2 حصے کیا، عشق نے ہی چاند کو انگلی سے 2 ٹکڑے کیا، عشق، ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، عشق عکس مصطفیٰ ہے، عشق عیسیٰ کی شبیہ، عشق قرآن محمد، عشق انجیل مسیح، عشق خاکی وہ کہ جس کا نام صادق اور امی، عشق نوری وہ کہ جو ہے رحمت للعالمین، عشق ہے شیب ابی طالب کے پورے 3 سال، عشق ہے عمار و یاسر، عشق حمزہ و بلال، عشق ہے عمار و یاسر، عشق حمزہ و بلال، وہ عمار ہوں یاسر ہوں حمزہ ہوں بلال ہوں ابوبکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں یا حیدر کرار ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، عشق مصطفیٰ کی لازوال، جو عشق مصطفیٰ کی لازوال داستان ہیں ان کے یہ کردار ہیں جنہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو کرنی کیسے ہے، یہ محبت کرنی کیسے چاہیے، اس کا انداز کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے تقاضے کیا ہوں، یہ سب ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سکھا دیا، بتا دیا، دکھا دیا۔ یہ عظیم ہستیاں اس محبت میں اتنے آگے نکل گئے ناظرین کرام کہ جب عشق نے ان سے مال کا تقاضا کیا، جب بھی رسول اللہ کی محبت اور عشق میں مال کا تقاضا ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں،
कितना माल कब कैसे वापस मिलेगा, अजर मिलेगा, इफ्स एंड बट्स हम तो यही करते हैं। कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, पूछ कर देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कहीं ज़्यादा ना दे दें, जेब में कम ना हो जाए। लेकिन इश्क़ मोहम्मद में जब भी नाज़ीम हस्तियों जिनका मैंने नाम लिया उनसे माल का तकाज़ा हुआ तो विदाउट इफ्स एंड बट्स माल पेश किया। इस इश्क ने जब उनसे उनकी औलाद का तकाज़ा किया, हमसे कोई कह दे कि अपनी औलाद दे दो हमें इश्क के लिए, हम क्या करेंगे? हम इतनी सी आंच बर्दाश्त नहीं करते अपने बच्चों पर। औलाद का तकाज़ा हुआ इश्क नबी में तो उन्होंने अपनी औलादों को पेश कर दिया। यहाँ तक कि इश्क ने जब उनसे उनकी अजीज़ तरीन मता, जिसे हम मताए जहाँ कहते हैं, अपनी जानों का भी मुतालबा हुआ तो अपनी जानों को भी अल्लाह के रसूल और उनके इश्क में उन्होंने खुशी खुशी कुर्बान कर दिया। वो किसी इम्तिहान, किसी आजमाइश, कभी इस चीज़ों से सोचकर इन चीज़ों को पीछे ना हटे। कोई मसलहत, कोई मजबूरी, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक उनके कदम नहीं डगमगा सका। कोई माल, कोई दौलत, कोई ओहदा, कोई मनसब उनके और इस इश्क के दरमियान रुकावट नहीं बन सका। बारगाहे नबवी में हाजिरी होती तो उनके लबों पर बस यही कलिमात होते थे, फिदा का अबियो उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबियो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, फिदा का रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह, फिदा का कल्बी व रूही या रसूल अल्लाह, मेरी जान और मेरा दिल आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अपने महबूब के एक इशारे पर सर झुकाना इन्होंने अपना मामूल बना लिया और फिर इस मोहब्बत की ताकत और इश्क की हरारत ने उन्हें ज़माने भर का इमाम बना दिया। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। तो खुदा की कसम नाज़रीन कराम, जो माएँ बहनें भाई बुज़ुर्ग बैठे देख रहे हैं, जो मासूम बच्चे बैठे देख रहे हैं, खुदा की कसम नबी की ग़ुलामी में बड़ी इज़्ज़त है। अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी कर लो, मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया ही क्या तुम्हारी, दुनिया बनाने वाला भी तुम्हारा। दुनिया बनाने वाला तुम्हारा हो गया तो फिर क्या ही बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा वक़ार है। गाड़ियों में, घरों में, बहुत सारे पैसे में इज़्ज़त ना तलाश करो, इज़्ज़त है नबी के ग़ुलाम बनने में। नबी की ग़ुलामी में बड़ा प्यार है, इसमें बड़ा हुस्न है, बड़ी रानाई है। वो जो लोग कहते हैं ना मैं पता नहीं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, ये वो बज़्म इश्क है जहाँ कोई नहीं पूछता कि तू कौन है, तेरी बरादरी क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है। लबों पे अगर ज़िक्र मुस्तफ़ा है तो दुनिया तुम्हारी ग़ुलाम है। और यही सहाबा के साथ हुआ, वो नबी के ग़ुलाम बन गए तो ज़माना उनका ग़ुलाम बन गया, वो नबी के इताअत गुज़ार बन गए तो दुनिया के सरदार बन गए। अल्लाह अकबर। उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। और नाम लेवा उनके जो हुए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए। क्या बात, क्या बात, उनके क्या बात। ऊंचे नाम। और वो कहते हैं ना, चाहे तो इशारों से अपने
काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है अनदेखे, देखा तो नहीं है इन गुनाहगार आंखों ने, लेकिन फिदा है। हर कोई फिदा है अनदेखे, तो सोचिए दीदार का आलम क्या होगा। नाज़रीन किराम, हिजरत की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खैमा रास्ते में आया जिनका नाम उम्मे माबद था। अब बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की दौलत से भी सरफराज फरमाया। उम्मे माबद के खैमे के करीब रसूल अल्लाह तशरीफ़ फरमा थे। फरमाया कि हम मुसाफिर हैं, हमें भूख लगी हुई है, आपके पास कुछ है तो हमें पेश कर दें। उस खातून ने अर्ज़ की कि मैं एक अरब खातून हूँ और मेहमानों की खिदमत आओ भगत करना, इससे तो हमें क़ल्बी मुसर्रत हासिल होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक से ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैमे के बाहर जो तुम्हारी एक बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसके दूध से हम अपनी भूख मिटा लें। वो खातून ये सुनकर मुस्कुराई और कहा, ये बकरी, ये तो इतनी लागिर है कि दूध तो बहुत दूर की बात है, ये तो रेवड़ के साथ चल कर जाने के काबिल भी नहीं है। मतलब इतनी कमज़ोर है ये बकरी कि जब रेवड़ चल रहा होता है, ये इसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके साथ मिल जाए। इस औरत की इजाज़त और रसूल अल्लाह के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बकरी खोली और उसे रसूल अल्लाह के सामने खड़ा किया। आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पर फेरा तो नाज़रीन कराम, मौजज़ा देखा वहाँ मौजूद लोगों ने। वो बकरी दूध देने लगी। उस खातून उम्मे माबद जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने बर्तन पेश किया, वो दूध से भर गया। तो वो एक और बर्तन लेकर आई, वो एक और बर्तन, वो भी बड़ा बर्तन था, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे उम्मे माबद के पास वो लाती गई और दूध से भरते गए। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने फिर खुद दूध नोश फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया, आपके दीगर जितने भी साथ हमराही थे उन्होंने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया। उसका एक बच्चा घर में था, वो भी भूखा था, उसने भी वो दूध पिया। फिर भी वो दूध बड़ी वाफर मिक़दार में मौजूद रहा। नाज़रीन किराम, दूध बच गया तो वो उम्मे माबद ने अपने शौहर के लिए उठा कर रख दिया। रसूल अल्लाह ने उस खातून को खैर व बरकत की दुआ दी और वहाँ से अपने साथियों समेत तशरीफ़ ले गए। शाम हुई। उम्मे माबद का शौहर जो कि एक चरवाहा था, बकरियाँ चरा कर जब वो अपने घर वापस आया तो घर में दाखिल होते ही अभी नहीं देखा कौन आया था, क्या मामला हुआ, लेकिन आप सोचिए कि रसूल अल्लाह वहाँ से क़याम करके गए हैं। जब शौहर आया, अनोखी और एक खुशगवार सी तब्दीली महसूस की। हम आजकल कहते हैं ना वाइब, एटमॉस्फेयर। जब वो शख्स अपने ही घर में आया तो उसे एटमॉस्फेयर बदला सा लगा, वाइब बदली सी लगी, एक खूबसूरती, एक एहसास, एक सुकून महसूस हुआ। तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, उम्मे माबद, आज ये माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है, क्या बात है, कौन आया था घर में? चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। तो अबू माबद ने उसी कैफियत के ज़ेरे असर अपनी बीवी से ये पूछा कि कौन आया था। तो उम्मे माबद ने कहा कि उनका नाम पूछना तो मुझे याद नहीं रहा, बस ये समझ लो कि तुम्हारे घर एक मुबारक शख्स आया था, मुबारक शख्स आया था। अबू माबद एक इंतहाई नेक फितरत इंसान था। उसने बीवी से किसी मुबारक शख्स की अपने घर आमद का सुना तो बेकरार होकर रह गया और कहा, माबद की माँ, ज़रा उस शख्स का हुलिया तो मुझे बताइए, कहीं ये वही तो नहीं जिनकी तमन्ना मुझे बेचैन किए रखती है। ये सुनते ही उम्मे माबद ने, जो एक देहाती और अनपढ़ खातून थी, ना कोई शायर, ना मुसव्विर, ना कोई अदीब, ना कोई खतीब, उसने जो कहा जलवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जो उनकी प्रेजेंस के बारे में कहा,
रब्बुल आलमीन की एहसन तरीन तख्लीक के खदोकाल को एक ही सांस में ऐसे खूबसूरत अल्फाज में बयान किया कि बड़े से बड़े शायरों की शायरियत और बड़े से बड़े अदीबों की अदबियत भी इन अल्फाज के आगे मांद पड़ जाए। ज़रा मोहब्बत से आप भी उम्मे माबद की लफ्ज़ी तस्वीर को सुनिए। मुस्तफ़ा की एक हल्की सी झलक आपके जहन की स्क्रीन पर खुद ब खुद इन अल्फाज के साथ उभर कर सामने आ जाएगी। अल्लाह फरमाती हैं, वो एक मुतबर्रक शख्स थे, चेहरा पुरसुकून और रोशन था, हुस्नो जमाल का कमाल था, खुश अखलाक और खुश अंदाम थे, न जसीम थे न हरीफ थे, आंखें गहरी स्याह थी, पलकें दराज थी, आवाज में रोब था लेकिन सख्ती न थी, आवाज में रोब था लेकिन सख्ती न थी, आंखों के ढेले सफ़ेद चमकदार और पुतलियां बहुत स्याह थीं, आंखों के किनारे ऐसे थे कि ऐसा लगता जैसे सुरमा लगा हुआ हो, भवें बारीक, न एक दूसरे से जुड़ी हुई और न बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल मुनासिब। गर्दन में दराजी थी, पेशानी कुशादा थी, बाल स्याह थे, दाढ़ी घनी थी, अगर खामोश होते तो उनके वक़ार में इजाफा होता, गुफ्तगू करते तो शख्सियत नुमाया होती। अल्लाहु अकबर। खुश कलाम, खुश गुफ्तार थे, लहजा नरम और आवाज़ असर अफरी थी, अल्फाज उनके मुंह से ऐसे निकलते जैसे मोतियों की लड़ियां निकल रही हैं, एक एक लफ्ज़ वाज़ेह, एक एक लफ्ज़ साफ, आवाज़ दिलकश, इतनी बारोब के गोया हर सिमत छाई हो, लेकिन इतनी शीरीं और नर्म के दिल में उतरती हुई महसूस हो। मयाना कद, न दराज न पस्त, वो खुश शक्ल और खुश नज़र थे, उनके साथी उनके गिर्द ऐसे जमा रहते जैसे 14वीं के चांद के गिर्द सितारों ने हाला बना रखा हो। वो हुक्म देते तो उनके साथी दौड़ पड़ते, उनकी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनते और उनकी राह में अपनी आंखें बिछाते, निगाहें नीची रखते और अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से बुलंद ना करते। अल्लाह अकबर। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कराम पर मिली हो तो उनको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, बयां नहीं। मुख चंद बदर शाशानी, मथ चमके दिलाट नूरानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथ चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ देख मस्तानी, काली जुल्फ देख मस्तानी, मखमूर अखीन मद भरिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। उस खातून ने, इमरान भाई, हसीब असद भाई, उस खातून ने रसूलुल्लाह के सरापा मुबारक बयान करते हुए एक तवील गुफ्तगू की और आखिर में जो अल्फाज कहे मैं आपके सामने रखूंगी, आपको भी लुत्फ़ आ जाएगा। और मैं कहती हूँ कि हम सब उम्मे माबद के इन 2 जुमलों पे कुर्बान हो जाएंगे। जब उन्होंने इतनी तफसील से ये बयान किया, और मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो देहाती औरत थी, लेकिन जब उसके शौहर ने कहा कि मैं तुमसे अगर कहूँ कि 2 अल्फाज में या 2 जुमलों में बयान करो, अगर उसका नक्शा बताओ तो वो क्या बताओगे, तो उन्होंने कहा, अबू माबद, जब वो दूर से आ रहा था, जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा हसीन और जमील लगता था
اور جب وہ قریب آ گیا تو پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل لگنے لگا. اللہ اکبر. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب یہ پوری انہوں نے ایک تفصیل پیش کی, جب پکچرائز کیا کہ وہ شخص کون آیا تھا, اور جب ان کے شوہر نے سنا تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا, مجھے اپنے بچے معبد کی قسم, وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اگر میں ان کو پاتا تو ان کے ساتھ ہی چل پڑتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو ایسا عاشق رسول بنائے کہ ہم صرف نبی کو نہ مانیں, نبی کی باتوں کو مانیں, نبی کی باتوں کو اپنائیں, اور اسی عشق کو دل میں رکھ کر اس دنیا سے چلے جائیں. آمین ثم آمین. محفل عشق میں ایک بریک, اس محفل رمضان میں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہماری اس ٹرانسمیشن کا سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہمارے علماء کرام انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے. نشست کا آغاز کریں گے, پہلی نشست علماء کرام کے ساتھ. آپ کے کوئی بھی سوال ہو ہمیں لکھ کر بھیجیے ایک بریک کے بعد انشاءاللہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.